So, good morning, students. Today we will start the chapter number 9, The Bond of Love, that is written by Kenneth Anderson. So, now let's introduce about this chapter. Love is the thread which binds the whole world. प्यार एक ऐसा धागा है जो इस पूरे संसार को बांधे रखता है. Love transcends boundaries of caste, countries, religion. Feeling of compassion and tenderness can be seen among fellow human beings, among animals, and between human beings and animals. Animals also have feelings and emotions. Animals में भी feelings और emotions पाए जाते हैं. If given love, care and affection, they develop strong bond with humans. अगर उन्हें उचित प्रेम, देखभाल और उन्हें केयर दी जाए तो वे भी अपने बीच एक प्रकार के बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं मनुष्यों के साथ. द स्टोरी द बॉन्ड ऑफ लव रिवॉल्व्स अराउंड द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द ऑथर्स वाइफ एंड द बेबी बियर. यहाँ पर जो कहानी है बॉन्ड ऑफ लव, यह कहानी एक लेखक की जो पत्नी है और एक बेबी बियर है उसके प्रेम के इर्द गिर्द, जो उनका बंधन था प्रेम का, उसके इर्द गिर्द ही घूमती है. The emotional bond between the bear and the author's wife was so strong. अब उस बेबी बियर और ऑथर की जो वाइफ थी उसके बीच में जो इमोशनल बॉन्ड था वो इतना स्ट्रॉन्ग था that he recognized her even after 3 months, कि वह उसे 3 महीने बाद भी पहचान लेता है. Animals do not forget those shower of love. और जानवर जो होते हैं वो अपने इस प्रेम की शावर को भूल नहीं पाते हैं. एंड अफेक्शन ऑन देम, और जो स्नेह हम उन पर दर्शाते हैं वो उसे कभी भी नहीं भूल पाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द समरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. एनिमल्स हैव ए राइट टू लिव विद डिग्निटी. द स्टोरी द बॉन्ड ऑफ लव कन्वेज द मैसेज. ये जो कहानी है हमें एक संदेश देती है दैट वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, कि हमें जानवरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए. एज दे ऑल्सो कैन फील एंड अंडरस्टैंड इमोशंस लाइक ह्यूमन बींग, कि वे भी मनुष्यों की तरह जो भी इमोशंस के होते हैं उन्हें महसूस कर सकें, उन्हें अच्छी तरह से समझ सकें. दे हैव ए राइट टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ, और उनका भी एक अधिकार है डिग्निफाइड जीवन जीने का. Bruno is found. The author and his friends were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from their fields by shooting at them. Suddenly, a sloth bear came out of the fields. One of the writer companions shot at the bear. It fell dead. They came near the fallen animal and saw a bear cub riding on its mother's back. The cub was making pitiful howls. The writer tried to catch the cub, but it ran away into the fields. The writer and his friends caught it and put the bear into a gunny bag and brought it to Bangalore. Now, relationship between Bruno and author's wife. The author gave the little cub to his wife. She was very happy to have this little cub. She named him Bruno. The author's wife looked after the bear cub as her own child. She taught Bruno to drink milk from a bottle. Soon he started eating everything. He enjoyed eating porridge, vegetables, fruits, nuts, meat, curry and rice. He became attached to the children of all the tenants. He spent time playing, running into the kitchen and going to sleep in the beds of the author and his wife. Because of the love and affection shown by the author's wife, he developed a great affection for her. Then, one day, Bruno met with an accident. Bruno drank the poison which was meant to kill the rats. He suffered a stroke of paralysis. The author at once took him to a veterinary doctor. He was given an antidote of 10 cc through an injection. But his condition remained critical. Then another 10 cc was injected which improved his condition. Bruno got up and enjoyed a good meal. Another time, the little bear drank a lot of old engine oil.
but fortunately it had no effect on him. With the passage of time, Bruno grew up in size. He became very mischievous too. He was very fond of Author's wife. She also loved him a lot and started calling him Baba lovingly. He could even do a few tricks. With the passage of time, Bruno became too big to be kept at home. The author, his friends, and his son advised the author's wife to gift Baba to the Jew at Mysore. After some days, and his conditions advised, the author, his friends, and his son advised the author's wife to gift Baba to Jew at Mysore. After some days, the author's wife agreed. A letter was sent to the curator of the Jew, and he agreed to take the beer. Baba was sent to the Mysore Jew in a cage. The author's wife felt sad and cried for the first few days. She even refused to take food. She wrote many letters to the curator of the Jew asking about the condition of Baba. Baba was also unhappy at the Jew. He also refused to take the food and looked sad. Now Bruno and author's wife are both depressed. The author's wife was very sad at her separation from the beer. For the first 3 months, the author's wife somehow stopped herself from visiting Mysore. At last, she visited the Jew to meet Baba. When Baba saw her, he cried for happiness. The author's wife also ran up to him and petted him for the next 3 hours. She didn't leave the cage. Author's wife felt that she could not live without the beer. She requested the superintendent to send Baba back, and he consented, and Baba was brought back to the author's home. At home, an island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide. It was surrounded by moat 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box was kept for Baba to sleep at night. Straw was placed to keep him warm. Baba was very happy in his new home. The author's wife spent a lot of time with the bear. It is a story that depicts that animals also reciprocate love and affection given to them. They also love us unconditionally. Now we will discuss the summary part of this chapter in Hindi. इस चैप्टर का जो नाम है वो है स्नेह का बंधन। यहाँ बताया गया है कि जानवरों को भी गरिमा से रहने का अधिकार है। द कहानी बॉन्ड ऑफ लव हमें ये संदेश देती है कि हमें भी प्राणियों के प्रति उदार रहना चाहिए, क्योंकि उनमें भी मानव प्राणियों के समान एहसास और भावनाएं होती हैं। उन्हें भी सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। लेखक और उसके मित्र मसूर के पास एक गन्ने के खेत से गुजर रहे थे। लोग गोली चलाकर अपने खेतों से सुअरों को निकाल रहे थे। अचानक एक काले लंबे गंदे बालों वाला भालू खेत में से निकला। लेखक के मित्रों में से एक मित्र ने उस पर गोली चला दी और वह गिरकर मर गया। और वे गिरे हुए जानवर के पास आए तो उन्होंने एक भालू के बच्चे को अपनी माँ की पीठ पर चढ़े हुए देखा। अब भालू का बच्चा जो था करुणामय आवाज़ से जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेखक ने बच्चों को पकड़ने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह दौड़कर खेत में चला गया। लेखक तथा उसके मित्रों ने उसे पकड़ लिया और टाट के बोरे में बंद कर दिया और उसे वो बेंगलोर ले आए। लेखक ने उस बच्चे को अपनी पत्नी को दे दिया। अब उसकी जो पत्नी थी बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई। उसने उसका नाम ब्रूनो रख दिया। लेखक की जो पत्नी थी वह उस भालू के बच्चे की देखभाल अपने बच्चे की तरह किया करती थी। उसने ब्रूनो को बोतल से दूध पीना सिखा दिया। जल्द ही वो सब कुछ खाने लग गया, जैसे दलिया, सब्जियां, फल, मेवे, मांस और रसीले व्यंजन और चावल बहुत ही मज़े से खाता था। वह किराएदार के बच्चों से भी खूब घुल मिल गया था। वह अपना समय खेलने में, रसोई में दौड़कर जाने में तथा लेखक तथा उसकी पत्नी के बिस्तर पर सोने के लिए जाने में व्यतीत करता था। लेखक की पत्नी के प्रेम और वात्सल्य के कारण उसका जो प्रेम था वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था। एक दिन ब्रूनो के साथ एक अजीब सी दुर्घटना घटित हुई। ब्रूनो ने जहर पी लिया जो चूहों को मारने के लिए था। उसे
पैरालिसिस हो गया और लेखक तुरंत उसे पशु चिकित्सा अधिकारी के पास ले गया। उसे 10 सीसी विषरोधी इंजेक्शन के द्वारा दिया गया, लेकिन इस दशा में उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रूनो उठा और उसके अच्छे भोजन का आनंद लिया। दूसरी बार उस छोटे से भालू ने इंजन का बहुत सारा तेल पी लिया। अब सौभाग्य से उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। ब्रूनो आकार में भालू के रूप में बदल गया। वह अत्यंत शरारती भी हो गया। अब वह लेखक की पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करता था। वह भी बड़ा उसे प्यार करती थी। प्यार से उसे वह बाबा कहकर बुलाना आरंभ कर दिया। अब वह कुछ और भी करतब दिखाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ब्रूनो इतना बड़ा हो गया कि वह घर में नहीं रखा जा सकता था। लेखक, उसके मित्रों और उसके पुत्र के लेखक ने को पत्नी को सुझाव दिया कि उसे मैसूर के चिड़ियाघर में भेज दिया जाए। कुछ दिनों बाद लेखक की पत्नी भी राजी हो गई। संग्रहालय अध्यक्ष को एक पत्र भेजा गया और भालू को ले जाने के लिए वो तैयार हो गया। बाबा को एक पिंजरे में मैसूर के चिड़ियाघर में ले जाया गया। लेखक की पत्नी बहुत दुखी हुई। कुछ दिनों तक रोती रही, यहाँ तक कि उसे भोजन करने से भी मना कर दिया। उसने संग्रहालय अध्यक्ष को बाबा की स्थिति जानने के लिए अनेकों पत्र लिखे। बाबा भी चिड़ियाघर में दुखी थी और उसने भी भोजन लेने से मना कर दिया और वह भी दुखी दिखाई देता था। अब लेखक की पत्नी भालू के बिछुड़ने से बहुत ज़्यादा दुखी थी। फिर किसी तरह 3 माह तक लेखक की पत्नी ने चिड़ियाघर में जाने से स्वयं पर नियंत्रण रखा। आखिरकार वह बाबा से मिलने एक बार चिड़ियाघर पहुंच गई। जब बाबा ने उसे देखा तो वह खुशी से चिल्ला पड़ा। लेखक की पत्नी दौड़कर उसके पास गई और प्यार से उसे थपथपाया। 3 घंटे तक उसने पिंजरे को नहीं छोड़ा। लेखक की पत्नी ने महसूस किया कि भालू के बिना जीवित नहीं रहेगी, तो उसने अधीक्षक को बाबा को घर वापस भेजने की प्रार्थना की। तो वह राजी हो गया और बाबा को लेखक के घर वापस लाया गया। अब घर पर बाबा के लिए एक टापू बनवाया गया। वह 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था। उसके चारों ओर 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी खाई खोदी गई। बाबा के लिए रात्रि में सोने के लिए लकड़ी का एक बक्सा और गर्म रखने के लिए पायल बिछाया गया। बाबा अपने नए घर में बहुत ज़्यादा खुश था। लेखक की पत्नी भालू के साथ काफ़ी समय बिताती थी और कहानी चित्रित करती थी कि जानवर भी परस्पर प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। वे बिना किसी शर्त के हमसे प्रेम करते हैं। सो दिस वॉज द कंप्लीट summary part of this chapter in Hindi and English and introduction part. If you have any doubt or any confusion in this part, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.